Good morning, everyone. Welcome to Ansarkari. Today we will take up newspaper of Indian Express of 27th December. First article is on page number 1, which talks about the meeting between Prime Minister Modi ji and President of Ukraine Zelensky. Zelensky had sought India's support regarding 10-point peace formula which he had proposed in US. फॉर्मूला के अंदर में क्या क्या पॉइंट्स है वो है, पहला पॉइंट है कि विड्रॉल ऑफ रशियन ट्रूप फ्रॉम यूक्रेन, देन रिलीज ऑफ प्रिजनर्स, रेस्टोरेशन ऑफ यूक्रेन टेरिटरी इंटीग्रिटी एंड गारंटी ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी. Further, India has been promoter of world peace, stability in the region. The Prime Minister Modi ji had also talked about the era of peace, not war, with Russian president. So this showcases the India's trajectory towards becoming a global power. For that, India is also providing humanitarian assistance to Ukraine, that including medicine, blanket, tent, medical equipment, etc. So, India has also supported the dialogue and diplomacy, which is only the solution regarding peace between two countries. Further, second article talks about Veer Bal Divas, which has been held on 26th December. It marks the killing of 4 Sahibzada of 10th Sikh Guru, Guru Gobind Singh. Next article is on page number 9. It talks about the joint operation of Gujarat Anti-Terrorist Squad and Indian Coast Guard by capturing 10 Pakistan national and seizing their drugs and arms. जो maritime boundary line है इंडिया का, it is patrolled by Indian Coast Guard. Further, it also poses challenges for India to maintain security across the coastal line, because it can be used for smuggling arms, human and also drugs. We have already seen from 26/11 that Pakistani terrorists use motorboat to cross Arabian Sea and enter Mumbai via sea. और इसके कारण India has to maintain a armed coastal guard. Further, जो भी बीच में joint practices है स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट पुलिस का और साथ ही साथ जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का, वो होते रहना चाहिए ताकि जो कोस्टल लाइन है वो सिक्योर रहे. Then next article is on page number 10, which talks about the trade pact. India has been negotiating trade pact with UK and European Union. Already the free trade agreement has been signed with Australia and UAE on several products. तो क्या क्या इसमें important issue है, that is keywords क्या क्या है. First is non-tariff issues, issue regarding carbon emission, and also the price of carbon which will be imposed on import by European Commission. और दूसरा है नॉन एसेंशियल आइटम, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. तो ये जो आर्टिकल कहना चाह रहा है कि अभी जो बात चल रही है बिटवीन इंडिया एंड यूके एंड यूरोपियन यूनियन इज एडमेंट ऑन इशू ऑफ कार्बन एमिशन अंडर द फ्रेमवर्क दैट विल बी एप्लीकेबल इन 2023. लेवाइज विल बी इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एमिशन. मतलब जो भी गुड है वो अगर इंपोर्ट किया जा रहा है यूरोपियन यूनियन में फ्रॉम एशियन डेवलप एंड अंडर डेवलप कंट्रीज, तो उस पर एक कार्बन टैक्स लगेगा, कार्बन ड्यूटी लगेगा.
इससे कारण क्या होगा, जो भी डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज है उसका जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करेगा, एंड दैट विल हेल्प यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्यों? क्योंकि जॉब क्रिएशन वहाँ पे होंगे और जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो वहाँ ग्रोथ होगा, क्योंकि वहाँ पर लोअर कार्बन एमिशन होता है। तो ये एक ओवरऑल इशू है क्लाइमेट चेंज के अंदर में, और साथ ही साथ हाउ क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स द ट्रेडिंग पॉलिसी बिटवीन कंट्रीज, एंड ऑल्सो द इशू ऑफ स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट between north and south, between developed and underdeveloped countries. Then next article talks about the role of AI and its potential. The OpenAI को chat GPT है. It is a chatbot which gives some human to human conversation. If you just type question तो it will give some form of answer. So it can be used in exam, essay, college essay, etc., which is also readable, but it is not accurate. Even the chat GPT has already said कि वो एक accurate नहीं है. तो इसके जो पीछे जो bias है, AI का जो bias है in the algorithm, it can be affected, it can be skewed. और दूसरा चीज़ क्यों है कि जो इंफॉर्मेशन है अगर वो कंट्रोल्ड है, then the chat GPT cannot produce a correct result. It will also produce the bias and skewed result in its answer. तो इसका थ्रेट हो सकता है कि ना डेमोक्रेसी एक नैरेटिव को इस्टेब्लिश करने के लिए बाय द रूलिंग पार्टी और रूलिंग गवर्नमेंट, और साथ ही साथ बिग टेक और जो प्राइवेट सेक्टर है, they can use chat GPT, they can use information, they can use a bias algorithm to promote their own product and ideology. तो ये हार्मफुल हो सकता है लॉन्ग टर्म में, ये वही बात कर रहे हैं. Then next article is important regarding India and Russia relationship. तो ये पूरा आर्टिकल में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया शुड बी वेरी कॉशियस इन डीलिंग विद रशिया. क्यों? क्योंकि हम लोग जो बात करते हैं कि इंडिया रशिया भाई भाई है, इंडिया रशिया दोस्त है, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रशिया हैज़ इट्स ओन इम्पेरियलिस्टिक टेंडेंसीज. तो देर आर सेवरल पॉइंट्स विच आर्ग्यूज दिस पोजिशन. फर्स्ट, हिस्टोरिकल जो एविडेंस है वो बताते हैं आर्टिकल में, जैसे कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में और सोवियत यूनियन प्रोक्लेम हुआ था 1922 में. बोल्शेविक रेवोल्यूशन इज लेफ्ट रेवोल्यूशन इन USSR, और साथ ही साथ यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक 1991 में ख़त्म हो गया. तो उनका रोल था, मॉस्को का रोल था कि इट प्लेड ए इम्पॉर्टेंट रोल इन कर्टेलिंग, इन कंट्रोलिंग, in defeat of Nazi Germany in Second World War. After that, it posed an alternative model, alternative ideology with respect to Western capitalism on the basis of advancement in science, technology and military space, etc. तो इंडिया और सोवियत का लेगेसी है कि इंडिया was a silent supporter of Soviet Union during 1950s, 60s, 70s, 80s. और अभी जो क्या है कि जो पुतिन का जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, जो कीवर्ड है इन द यूक्रेन, इसको थोड़ा ध्यान कॉशियसली देखना चाहिए इंडियन पॉलिसी मेकर को. क्यों? क्योंकि इट ऑल्सो हैज़ नेशनलिस्टिक, इंटरनेशनलिस्टिक, कम्युनिस्ट एंड इम्पेरियलिस्ट डिज़ाइन. पहले जो सोवियत यूनियन था वो एक तरह से फॉर्म हुआ था with keeping in the mind anti क्रिश्चियन और साथ ही साथ प्रो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से. लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो चेंजेस था सोवियत यूनियन में, इट वाज प्रो साल्व, मतलब स्लाविक रीजन है जहाँ पर स्लाविक एथेनिसिटी है, जहाँ से लोग आते हैं
हर जगह पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेलारूस में, यूक्रेन में, पोलैंड में, और साथ ही साथ और भी जो सेंट्रल एशिया प्लस ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में मैक्सिमम स्लाविक पॉपुलेशन है। तो जो रशिया का जो आइडेंटिटी है, हिस्टोरिकल और डीप रूटेड जो पैन स्लाविज्म है, उसको बढ़ावा देने का है। और साथ ही साथ मॉस्को इज द हार्ट ऑफ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी विच सीज इटसेल्फ एज अ डिफेंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी अगेंस्ट मंगोल्स, कैथोलिक, ज्यूज एंड नेपोलियन, हिटलर एंड द वेस्ट। तो जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है वो एक तरह से इज इन अग्रीमेंट विद रशियन नेशनलिस्ट टुडे। तो ये ओवर आर्किंग जो आइडियोलॉजी है, इससे इंडिया को थोड़ा कॉशियसली चलना चाहिए, क्योंकि उनका व्यू पॉइंट और डिफरेंट है। फर्दर देयर हैज अ डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न रशिया एंड सोवियत यूनियन, और रशिया sees itself as a important country and its leader as a czar. Czar मतलब होता है ruler who would save them from feudal and corrupt local official. Fifth, that is Russia has no border. Further, रशिया का इतना बड़ा बॉर्डर है कि it can also be a potential threat to other regions, such as in Arctic region, in Eastern region, Eastern European region, Central Asia, and in the Western front, that is in the eastward front, that is Japan, along Japan, North Korea, China, etc. तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ये पूरा बोलना चाह रहा है आर्टिकल में कि रशिया का अपना हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है। ऑल्दो इंडिया एंड रशिया शेयर्स अ वेरी स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप रिगार्डिंग डिफेंस, ट्रेड, विजन इन एनर्जी सिक्योरिटी एक्सेट्रा, बट इंडिया हैज़ टू वेरी डील विद रशिया इन अ वेरी कॉशियस मैनर। सोच समझ के चलना चाहिए, क्योंकि जो रशिया का डोमिनेशन है वो सेंट्रल यूरोप में बढ़ रहा है, इंटरफेरेंस इन यूरोप ज़्यादा बढ़ रहा है, साथ ही साथ इंटरफेरेंस इन ईस्टर्न यूरोप भी बढ़ रहा है, और रशिया और चाइना का भी आने वाले वक्त में कोलैबोरेशन हो रहा है। और इसलिए इंडिया जो पॉलिसी मेकर है उसको जो रशिया हिंदी भाई भाई की जो नैरेटिव से ऊपर उठ कर एक कॉशन वे में देखना चाहिए। देन नेक्स्ट आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द ट्रेंड्स इन ग्लोबल इकोनॉमी। तो ट्रेंड्स क्या है, तो स्टार्ट करते हैं कि global growth is projected to slow from 6% to 3.2% in 2022 and 2.7% in 2023 by IMF. IMF प्रेडिक्ट करता है कि 6.6% से घट के 2.7% हो जाएगा ग्लोबल ग्रोथ। दिस शोकेसेस वीक ग्लोबल ग्रोथ प्रोफाइल इन सिंस 2001। तो क्या क्या एक्सटर्नल सिचुएशन है, फूड सिक्योरिटी का इशू है, एनर्जी सिक्योरिटी का इशू है, कमोडिटी प्राइसेस हैव बीन इंक्रीजिंग ओवर द फ्यू पास्ट मंथ, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन, ग्लोबल इन्फ्लेशन, इट इज फोरकास्टेड टू डिक्लाइन फ्रॉम 8.8% to 4% in 2024. Further, US rate has been hiked, और उससे क्या होता है कि इट मेक्स द कंट्रीज सच एज इंडिया लेस अट्रैक्टिव फॉर करेंसी ट्रेड। और साथ ही साथ दूसरा कि जब भी फ्लो अगर राइज होता है, फेड जो इंटरेस्ट रेट है उसका हाइक होता है, इट ऑल्सो मीन्स लोअर इम्पेटस फॉर ग्रोथ इन US and also bad news for global growth because there is outflow of fund from developing countries to US. Enthusiasm जो होता है फॉरेन इन्वेस्टर का कि फॉरेन में इन्वेस्ट करेंगे वो कम हो जाता है, and they also start to buy debt market in US. तो क्या क्या पॉजिटिव आउटलुक है विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी। तो कुछ पॉइंट्स हैं सच एज जो इंडिया का नियर टर्म ग्रोथ है वो इट इज़ ड्रिवन बाय डोमेस्टिक बायर,
क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वाइड देयर इज बीन अ स्टैग्नेशन इन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंड ऑल्सो ग्लोबल ग्रोथ, ग्लोबल GDP ग्रोथ। तो जो ग्रोथ है इंडिया का, इट इज़ फ्यूल्ड बाय डोमेस्टिक ग्रोथ। डोमेस्टिक का डिमांड बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है पैटर्न, तो इसलिए ग्रोथ भी हो रहा है। सेकेंड है हेडलाइन कंज्यूमर इन्फ्लेशन दैट इंक्लूड द फूड एंड एनर्जी, इट इज इन अ मॉडरेट फेज, मतलब 5.9 है, 2 से 6% होना चाहिए, तो 5.9 है। और दूसरा है कि कॉर्पोरेट डेट जो रेट्स है, इट इज़ इंक्रीजिंग। जो हाई लेवल डेट है, वो जो डेट टू GDP रेशियो है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। साथ ही साथ there is increasing of investment in fixed asset and also the corporate sale. Further, there has been other schemes such as PLI scheme that is giving impetus to manufacturing sector. Bank credit is showing growth of around double digit. Plus बाकी जो दुनिया में जो कंट्रीज है, they are मूविंग टूवर्ड्स China+1। China+1 मतलब होता है चाइना में तो इन्वेस्ट करेंगे ही, वहाँ भी फैक्ट्री बैठाएंगे और साथ ही साथ कोई और देश में करेंगे, ताकि जो पूरा जो अंडा है वो एक कंट्री में नहीं डाले, मतलब कि डाइवर्स कर सके, ताकि चाइना में कुछ भी प्रॉब्लम होगा। चाइना में ज़ीरो कोविड पॉलिसी जो एक है, जिसमें लॉकडाउन ज़्यादा फ्रिक्वेंट है, अगर वो हो तो कंपनी बैठे नहीं, कंपनी बाकी कंट्रीज जो वियतनाम हो गया, इंडिया हो गया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गया, वहाँ से प्रोडक्शन चालू रखे। इसीलिए China+1 स्ट्रैटेजी आर बीइंग अडॉप्टेड बाय मेनी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। फर्दर दे कहाँ पर, विद रिस्पेक्ट टू शूज, लेदर, सिरामिक्स एक्सेट्रा। फर्दर China center has also recorded increased in both direct and indirect tax, that is GST collection. Agriculture is also stable, it is growing at a very normal rate with regarding to Rabi and Kharif food production. Negatives क्या क्या है? US continues to grapple with inflation pressure, और वहाँ फेड रेट हाइक हो रहा है, जिसके कारण जो इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इट इज स्लोइंग डाउन एंड मनी आर पोर्ड इनटू ट्रेजरी बिल। और साथ ही साथ जो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म है वो बढ़ते जा रहा है, दैट इज पेविंग वे फॉर डी ग्लोबलाइजेशन। मतलब लोग अब ज़्यादा हैप्पी नहीं है विद रिगार्डिंग टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एक्सेट्रा, कि वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, कोई डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे। दे आर मूविंग टूवर्ड्स अ वेरी कंफर्टेबल एंड कंजर्वेटिव अप्रोच रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर। दूसरा जो है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यूज टू मतलब स्टेबल है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। IIP जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इट डिक्रीज टू 26 month लो in spite of festive season. Private consumption है, it was growing at 9%, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग है वो 4% से श्रिंक कर चुका है। फर्दर द रेशियो ऑफ एक्चुअल आउटपुट टू पोटेंशियल आउटपुट, इट इज़ अंडर नॉर्मल कंडीशन, वो नॉर्मल नहीं है। साथ ही साथ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है, उसमें डिस्ट्रेस है। क्रेडिट लाइन दिया गया था कोविड-19 रिलीफ पैकेज में, लेकिन तब भी बहुत डिफॉल्टिंग लोन है उसमें। सर फर्दर नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट इज वेरी वीक, और इन्फ्लेशन इज ऑल्सो एट अ वेरी हायर रेट। डिस्पाइट ऑफ दैट इंडिया इज परफॉर्मिंग गुड, और जो लॉन्ग टर्म इशू होगा वो है एनर्जी डिपेंडेंस। The imported energy is around 4% of country's GDP, which is also increasing the current deficit of the country. Further, the depreciating rupees will also increase the cost of import of both intermediate product and also the final product. And short term solution ही है कि जो एक से नॉन एसेंशियल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है उसको कर्व किया जाए, कस्टम ड्यूटी हाई किया जाए, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं। रूरल वेज गैप है वो भी डिक्रीज हुआ है,
फॉर कंटिन्यूसली फॉर 9th month. तो ये सब पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट है रिगार्डिंग द ग्लोबल ट्रेड एंड रिगार्डिंग इंडिया सिनेरियो. देन नेक्स्ट आर्टिकल talks about increase in private banks market share. It has rise to 38.4%. Private banks such as HDFC, ICICI, Axis Bank, Kotak Mahindra Bank is very important for credit growth as opposed to PSB. तो उसका जो टोटल क्रेडिट है उसका 38% है. That's all for today. Now coming to next newspaper of 28 December. So coming to next newspaper of December 28. First article talks about the Delimitation Commission, which has started the delimitation process of Assam constituency on the basis of 2001 census. ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी हो चुका है, 1976 में हो चुका है ऑन बेसिस ऑफ 1971 सेंसस. उस समय पॉपुलेशन था 1.46 करोड़, अभी 2.6 करोड़ है और अभी 3.11 करोड़ है इन 2011. Further, it is mandated under Article 170, that is, the census figures of 2001 will be used for readjustment of Parliamentary Assembly constituency in Assam, in the state, and the reservation will be provided for SC and ST with as per Article 330 and 332 of Indian Constitution. तो पहले भी हो चुका है. कहाँ हुआ है इस साल? जम्मू कश्मीर में हुआ है. वहाँ पर 6 एडिशनल कॉन्स्टिट्यूंसी दिया गया था जम्मू को, 1 फॉर कश्मीर. टोटल नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा करके 90 हो गया फ्रॉम 83 अर्लियर. तो नेक्स्ट आर्टिकल है कि रिगार्डिंग द नोट बैन डीमोनेटाइजेशन. तो एफिडेविट सबमिट किया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि क्या गवर्नमेंट एक जो डीमोनेटाइजेशन प्रोग्राम इशू किया गया था 2016 में, क्या वो एक ड्यू प्रोसेस से फॉलो हुआ था, क्या वो सही था, क्या गलत था, उस पर चर्चा हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में. तो रिगार्डिंग इन द एफिडेविट it has been found that several of the points are not mentioned, such as कि करेंसी टू जीडीपी रेशियो कितना इंक्रीज किया गया है, कितना हुआ है, कुछ सही में फ़ायदा हुआ है कि बढ़ते जा रहा है. ऐसा हो रहा था कि 11.3 था लेकिन बढ़ के 12 हो चुका है या 13.7 हो चुका है रिगार्डिंग करेंसी टू जीडीपी रेशियो इन 2021. और साथ ही साथ जो देयर इज अ स्टीप राइज इन सर्कुलेशन ऑफ 500 and 1000 रुपीज़ नोट, जो बढ़ करके 76% हो चुका है. क्वांटम ऑफ फेक करेंसी, क्या वो बढ़ा है घटा है, इस पर कोई अभी तक नहीं दिया हुआ. फर्दर और कि कैसे कंट्रोल हुआ है ब्लैक मनी, जो बोला गया था कि अनअकाउंटेड मनी है वो एक तरह से हायर डिनोमिनेशन में रखा जाता है. तो जो ये नोटबंदी हुआ है तो उससे कुछ फ़र्क पड़ा है, तो क्या कुछ टेंजिबल डेटा पॉइंट है, वो नहीं मेंशन है इसमें. फिर कैसे टेररिज्म कम हुआ है, ये भी मेंशन नहीं है एफिडेविट में. फिर और भी लिखा हुआ है कि लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या क्या है इसका, मतलब फेक करेंसी का, और साथ ही साथ डीमोनेटाइजेशन का, वो नहीं लिखा हुआ है, नहीं दिया गया. देन नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन पेज नंबर 10. आवर प्रेसिडेंट श्री द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है कि there are 5 fundamental attributes for good upright police officer. She was giving
she was addressing the probationer of 74th batch of IPS at Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy. Here she said that the people should not fear police. Police is for the protection of the people. तो कैसे होगा? उसके कारण तब होगा जब there will be a upright police officer that will increase the trust of the public, and it will also enhances the image of the government at large. तो उससे कैसे होगा? तो उसमें एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किया जाना चाहिए बाय द पुलिस ऑफिसर. तो उसका जो इमेज है तभी बढ़ेगा. तो क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें? पहला है इम्पार्शियलिटी. द पुलिस ऑफिसर शुड बी impartial. It should not support the opposition or the government. It should be very impartial in its duty. That is through the use of objectivity. दूसरा है courage. She should be courageous, competence and sensitivity towards the vulnerable section of society. Or she should be have attributes of integrity. इससे क्या होगा? It will increase the transparency, and also it will increase the image of the police among the people. पहले और अभी में there are various feudal habits in the police forces which reflects the colonial past, but it should be changed. The responsibility of the prevention, detection of crime, rule of law, and also the complexity of the issues such as terrorism, insurgency, militancy, ideology, communal violence requires skills, high levels of motivation among the police force. New technology, new ways of war, new ways of crime such as cyber crimes, and also cyber threat, regarding social media, technology driven policing is needed. मतलब ओवरऑल पुलिस को इक्विप होना चाहिए, बोथ उनके पास एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम होना चाहिए टू डील विद एवरी सेक्टर ऑफ क्राइम. हर जगह जो क्राइम होता है रिगार्डिंग कम्युनल वायलेंस, या तो इंसर्जेंसी हो या नॉर्मल क्राइम हो, सबको डील करने के लिए पुलिस फोर्स इक्विप्ड होना चाहिए, बोथ एथिकली और साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकली, इंफ्रास्ट्रक्चर भी. सब ओवरऑल से क्या होगा कि जो पुलिस के लिए जो ट्रस्ट है वो बढ़ेगा और साथ ही साथ गवर्नमेंट का इमेज सुधरेगा. तीसरा जो नेक्स्ट आर्टिकल है, इट इज़ ऑन पेज नंबर 11. इट टॉक्स अबाउट कि कैसे VFX एनिमेशन और गेमिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए इंडिया में. तो गवर्नमेंट हैज़ talked about the promotion of indigenous animation or animation, visual effect, gaming and comics in the country. तो दुनिया भर में कितना उसका परसेंटेज है? तो 260 बिलियन 275 बिलियन है एस्टिमेटेड ग्लोबल मार्केट. उसमें से इंडिया कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 बिलियन है. इट इज़ ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 8.8% एनुअल एनम. हर साल 8.8% ग्रो करता है और उसका इंडस्ट्री का टर्नओवर इट इज़ प्रोजेक्टेड टू रीच अराउंड 53 बिलियन. तो 20 गुना, अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 गुना बढ़ेगा आने वाले 5-6 साल में. तो टू प्रिपेयर द वर्क फोर्स बिहाइंड इट, देर इज नीडेड फॉर अ स्किल्ड प्रोफेशनल ऑफ अराउंड 1.85 लाख टू बी एम्प्लॉयड इन एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट एंड गेमिंग कॉमिक्स सेक्टर. तो कैसे होगा? उसके लिए दूरदर्शन प्रमोट करेगा इंडिजिनियस एनिमेशन टू द चिल्ड्रन. ऑल्सो देयर विल बी 2 टीचर्स इन एवरी स्कूल इम्पार्टिंग रेलेवेंट ट्रेनिंग एंड स्पेशल डिग्री कोर्सेज प्रोवाइडेड बाय UGC. तो 2 हो गया पॉइंट इसमें. फर्दर तीसरा पॉइंट होगा कि इंडियन एपिक्स सच एज रामायण एंड महाभारत विल बी यूज्ड फॉर इंस्पिरेशन टू डेवलप ऑनलाइन वीडियो गेम्स. चौथा पॉइंट होगा कि फोकलोर narratives will be used to motivate students to join these field.
जैसे अमर चित्र कथा एक कॉमिक था जिसमें हमारे राजा महाराजा और साथ ही साथ फोकलोर को प्रमोट किया जाता था, तो वैसे ही आने वाले वक्त में प्रमोट किया जाएगा। उसमें बैचलर पीजी प्रोग्राम भी होगा, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग भी होगा, क्रिएटिव आर्ट्स में बैचलर होगा, और 2 क्लास 5 क्लास 8 से 8 क्लास के बीच में 12 स्टैंडर्ड में भी कुछ ना कुछ करिकुलम में इंक्लूड किया जाएगा विजुअल डिज़ाइनिंग एंड ग्राफिक्स को। तो इससे 2-3 पॉइंट में फ़ायदा होगा इंडिया को। पहला, एक न्यू वर्क फोर्स पैदा होगा, मतलब न्यू वर्क फोर्स, इट विल हेल्प टू क्रिएट न्यू वर्क फोर्स टू मीट द ग्लोबल डिमांड ऑफ गेमिंग। दूसरा, इट विल ऑल्सो बूस्ट एंड स्ट्रॉन्ग and make the narrative of the India story regarding development, regarding the image of the India in the global world, तो इस गेमिंग से होगा। और तीसरा जो पॉइंट होगा, इट विल मोटिवेट द यूथ टू टेल्स देयर ओन स्टोरी, ओन फोकलोर। बेसिकली इट विल इनहांस द क्रिएटिविटी स्पेस अमंग इंडियंस। चौथा, तो एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ नैरेटिव बिल्डिंग में भी काम आएगा। Then next article is on page number 12. The article talks about the suitable officers. The officer must be equipped to make some changes in the policy decision. तो कैसे होगा इसके बारे में आर्टिकल में दिया हुआ है कि जो प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट है, इट विल बी सॉल्व रैपिडली विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लेकिन जो पॉलिसी मेकिंग है, इट लाइज विद द ब्यूरोक्रेट, और ब्यूरोक्रेट मोस्टली आर टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज, दैट इज IAS IPS एक्सेट्रा। तो वहाँ क्या क्या इशू है, दैट इज लैक ऑफ एडिक्वेट नॉलेज, लैक ऑफ मोटिवेशन, environment constraint and political leadership. Many of the senior posts are held by the IAS officers, or they need to be certain amount of training, motivation and guidance to deliver good policy decisions. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो होगा कि जो इंटर गवर्नमेंट और प्राइवेट ट्रेनिंग है वो बढ़ाया जाए। उससे क्या होगा कि जो इमेज है प्राइवेट सेक्टर का अमंग द सिविल सर्वेंट इज नॉट फ्रेंडली, वो ख़त्म होगा। क्योंकि इन द मॉडर्न वर्ल्ड प्राइवेट एंड गवर्नमेंट वर्क्स टुगेदर फॉर द नेशन। और साथ ही साथ अभी जो सिलेक्शन हो रही है सर्विस में, उसके 10 साल बाद उसे प्राइवेट सेक्टर में भेजा जाए और वहाँ ट्रेनिंग करके वापस से जो अपना फील्ड में है उसे मतलब पोस्ट किया जाए, तभी जाके क्या होगा। फॉर एग्जांपल ये हो चुका था जापान में, जिसमें देयर वाज अ डीलिंग ऑफ सैलरी स्केल जॉब फ्रॉम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। उससे क्या होगा, द आइडियाज ऑफ वर्किंग विद प्राइवेट सेक्टर, वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर विल इंक्रीज अमंग द सिविल सर्वेंट एंड विल हेल्प टू ब्रिज द गैप बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। The next point article talks about the role of Delhi मतलब India, the role of India in keeping the peace between the Russia and Ukraine। तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो क्लैश है वो, और साथ ही साथ यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने 10 पॉइंट पीस फार्मूला प्रेजेंट किया है नरेंद्र मोदी जी को इन द फोन कॉल, जो बात कर चुके हैं हम लोग, लेकिन वो फॉलो नहीं हो रहा है। तो क्यों किया गया? तो ये पूरा आर्टिकल बता रहा है कि कैसे इंडिया का जो ग्रोथ है एज अ वर्ल्ड लीडर वो होने वाला आने वाले वक्त में, और इंडिया कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ हार्बिंजर ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बिटवीन द नेशन, बिकॉज ऑलरेडी India's prime minister already had said to Putin directly that this is not an era of war, this is an era of peace. Then next article talks about project Icarus. It is a solar geoengineering project. बता, ये important point हो सकता है prelims examination में regarding the technological innovation to tackle climate change. So this plan involves shooting reflective particles in the stratosphere to deflect the rays of sun and help down bringing the terrestrial
टेम्परेचर, ये पहले भी हो चुका था बाय द नेचर इटसेल्फ, दैट इज इन 1991 वेयर द इरप्शन ऑफ माउंट पिनाटुबो इन फिलीपींस ब्रॉट अबाउट वोल्केनिक विंटर विद ग्लोबल टेम्परेचर कूलिंग बाय अराउंड 0.4 डिग्री सेल्सियस। सेम चीज हुआ था 1815 में, जहां पर माउंट टम्बोरा इन इंडोनेशिया लेड टू द ईयर विदाउट समर इन यूरोप एंड देयर वाज अ वाइल्ड हार्वेस्ट फेलियर एंड फ्लड। तो बेसिकली ये आर्टिकल कहना चाह रहा है कि हम लोग को जियो इंजीनियरिंग करना चाहिए और ये पॉसिबल भी है, लेकिन थोड़ा कॉशियस भी रहना चाहिए रिगार्डिंग न्यू टेक्नोलॉजी। क्या ये लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करेगा सोसाइटी एज लार्ज को कि नहीं। देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द इंडिया वेस्ट एंड G20। तो 2022 है ये सबको ये आर्टिकल बोलना चाह रहा है कि जो 2022 है 2022 है इज बीइंग कंपेयर्ड विद द डिस्ट्रप्टिव पीरियड सच एज 1962 इंडिया चाइना वॉर, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, 1979 इरानियन रेवोल्यूशन, सीज ऑफ मक्का, invasion of Afghanistan, 1989 fall of Berlin Wall, 1991 collapse of Soviet Union, economic reform of India, Gulf War, 2001 9/11 attack, fall of Taliban, war on terror, 2008 global financial crisis, 26/11 मुंबई टेरर अटैक। तो 2022 है ये करीब करीब कंपेयर किया रहा है ये सब ईयर से, जहाँ पर ये सब जो रेवोल्यूशन हुआ था या कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। तो क्या क्या रियलिटी अभी है। पहला रियलिटी है कि प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है ट्रेड में, और साथ ही साथ इंडिया का क्या रियलिटी है इसमें बात हो रहा है। इसमें बात हो रहा है कि द रशिया इन्वेजन ऑन यूक्रेन हैव कॉस्ट इंक्रीज इन फूड एंड एनर्जी प्राइसेस अक्रॉस द वर्ल्ड एंड साथ ही साथ इट हैड इम्पैक्टेड द वर्ल्ड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पुशिंग द ग्लोबल इकोनॉमी इनटू रिसेशन। दूसरा है कि चाइना एग्रेशन जो हुआ है इन द इंडो पैसिफिक एंड ऑल्सो देन इन द बॉर्डर लाइन इंडिया इन तवांग सेक्टर, इन गलवान सेक्टर एक्सेट्रा। और तीसरा पॉइंट है कि जो इंडिया का जो डिप्लोमेसी है इट इज़ वॉकिंग इन अ वेरी टाइट रोप मैनर, मतलब कि बहुत टाइटली मूव कर रहा है, बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है इंडिया विद रिगार्डिंग टू वेस्ट एंड ऑल्सो रशिया एंड चाइना। और चौथा पॉइंट है कि द एंगेजमेंट ऑफ तालिबान with India. India has also committed $3 billion investment in Afghanistan and encouraging the peace and cooperation and building infrastructure for the common Afghan people. And छठा पॉइंट है नेबरहुड क्राइसिस, जहाँ पर श्रीलंका में इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ हाल फिलहाल, जहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड देना पड़ा, और साथ ही साथ जो म्यांमार में वहाँ भी कू हुआ। फर्दर पाकिस्तान में भी अभी जो गवर्नमेंट क्राइसिस में है, क्योंकि जो कोलिशन है पीपीपी और पीएमएलएन का, वो भी ज़रूरी नहीं कि लॉन्ग टर्म रहे। तो ये चैलेंजेस है इन द नेबरहुड एंड ऑल्सो इन द ग्लोबल सिनेरियो रिगार्डिंग इंडिया। तो अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस क्या है। पहला है कि इंडिया हैज़ टू वॉक वेरी स्मूथली, वेरी कॉशियसली बिटवीन रशिया एंड चाइना। इंडिया कैन यूज रशिया as a reliable partner against Chinese control in Russia। रशिया चाइना को बैलेंस करने के लिए रशिया से बात विचार ज़्यादा ट्रेड करना पड़ेगा ताकि चाइनो रशिया रिलेशन है वो ज़्यादा बढ़े नहीं। और साथ ही साथ इंडिया को डील भी करना होगा चाइना के साथ थ्रू स्ट्रैटेजिकली एंड टैक्टिकली ऑन द ग्राउंड, स्ट्रैटेजी ऑन द ट्रेड स्फीयर, इकोनॉमिक स्फीयर एक्सेट्रा। G20 जो इंडिया का है, इट विल बी अ मैसेज टू द वर्ल्ड दैट इंडिया हैज अराइव्ड एज अ ग्लोबल पावर। इंडिया विल ऑल्सो amend its ties with West regarding food security, energy security, investment, free trade agreement with UAE, Australia, in the Indo-Pacific and also in the Quad। तो ये सब रियलिटी है जो एक नैरेटिव है सिर्फ, जो समझना चाहिए, इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है सिविल सर्विस के लिए। द नेक्स्ट आर्टिकल इज इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स GS3 पेपर की
3 नाम यहाँ इंपॉर्टेंट है, पहला है एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और जॉन माइनार्ड काइनेस। तो काइनेस का जो प्रिंसिपल था, बाकी सबका प्रिंसिपल था, इट वाज रिगार्डिंग द कि इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रेड चलते रहेगा तो वॉर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो कंट्रीज है दे आर वेरी इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर रिगार्डिंग ट्रेड एंड सर्विसेज, तो वॉर होने का चांसेस बहुत कम है। तो इससे वर्ल्ड पीस होगा, ग्रोथ होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगा, हर चीज़ आएगा, ये इनका कहना था। तो ये दे वेर सपोर्टर ऑफ फ्री ट्रेड, कैपिटलिज्म एक्सेट्रा। तो अभी जो है वो नहीं हुआ है। तो इसके हिसाब से बात किया जा रहा था। 1910 में एक बुक लॉन्च हुआ था, द ग्रेट इल्यूजन। वो बात किया था कि मॉडर्न एरा जो है उसमें पॉसिबल ही नहीं है वॉर। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है 1870 और 1914 में, जिसमें ट्रेड है वो बढ़, जो पर जीडीपी है वो बढ़ के 9.6 से 9% से बढ़ के 16% हो चुका है। तो काइनेस ने कहा था कि लंदन में बैठे बैठे हम लोग टेलीफोन से ऑर्डर कर सकते हैं मॉर्निंग टी, और साथ ही साथ दुनिया में जो भी प्रोडक्ट है उसको एक अच्छा क्वांटिटी और क्वालिटी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं लंदन में सिर्फ बैठ के। तो आज तो हम लोग घर बैठे ही कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन भी आसानी हो चुका है, कम्युनिकेशन भी आसान हो गया है। तो इससे कहना है कि क्या ये सब होने से ट्रेड और कॉमर्स होने से वॉर नहीं होगा? ऐसा नहीं है, वॉर तो होगा, और वो हुआ भी। लेकिन कैसे? अब तो उसका भी एक तरह से ट्रेंड है जो अभी दिख रहा है। पहले 1930s या 40s में हुआ वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, और साथ ही साथ सेम चीज़ 1990 और 2008 के बीच में हुआ कि ग्लोबल ट्रेड सोर हुआ फ्रॉम 15.3% एंड टू 25% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, जो घट करके 2022 आफ्टर कोविड में 20% हो चुका है। तो कैसे हो रहा है? तो पहला जो है कि जियो पॉलिटिकली कन्फ्रंटेशन बिटवीन टू सुपर पावर पहला है, और दूसरा है कि रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। पहला जो है रशियन इन्वेजन यूक्रेन से दुनिया में उथल पुथल हुआ, कोविड के बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट अलग हुआ, और साथ ही साथ जो यूएस का है दे हैव ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट ऑफ हाई एंड सेमीकंडक्टर चिप्स टू चाइना। दिस हैज़ pressurized the other developed countries to procure chips from other countries। तो ये दो है। तो इसमें इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है, वो कंपैरेटिव एडवांटेज का है। यहाँ पर ये बात कहता है कि डेविड रिकार्डो और एडम स्मिथ ने कहा था कि वेल्थ ऑफ नेशन में कि अगर हम लोग को फॉरेन कंट्री सप्लाई कर सकते हैं कमोडिटी चीपर, हम लोग जो कम्युनिटी बनाते हैं उससे अगर चीपर कम्युनिटी सप्लाई कर सकता है कोई भी दूसरे कंट्री, तो हम लोग को खरीदना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम लोग इंडस्ट्री को बेनिफिट पहुंचेगा और लेबर को भी बेनिफिट पहुंचेगा। तो इसके कारण क्या हुआ कि न्यू इमर्जिंग मार्केट इंक्रीज बढ़ा, जैसे चाइना हो गया, इंडिया अभी हो गया, जर्मनी हो गया। लेकिन उसके साथ ही साथ द हैप्पी एज है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि एक बार जब ताकतवर कंट्री हो जाता है दे स्टार्ट टू डिक्टेट द पॉलिसीज अराउंड द वर्ल्ड, और ये सूटेबल नहीं होता है टू द ओल्डर इस्टेब्लिशमेंट, ओल्डर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जो पुराने वर्ल्ड ऑर्डर इन विच यूरोपियन एंड यूएस इज एट अ वेरी हेजेमनिक कंट्रोल, वो ख़त्म हो जाता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। तो ये बताना चाह रहा है कि जो भी कॉमर्शियल एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है रिगार्डिंग ट्रेड एंड कॉमर्स की, उससे वॉर नहीं होगा, ऐसा नहीं है, वॉर होगा। और उसका भी दिख रहा है आने वाले समय में कि 20% जीडीपी घट चुका है फ्रॉम 25% ऑफ जीडीपी, जो पीक था 2008 में। वही बात है। देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द ग्रोथ इन डायरेक्ट टैक्स in Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, Delhi, Karnataka. They make up of around 73% of direct tax collection. तो बस ये पॉइंट है याद रखने का। दूसरा है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड विल बी पब्लिशिंग रूल्स फॉर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म।
हम लोगों ने बात कर चुका था पहले कि गेमिंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जाए सरकार के द्वारा, लेकिन उसके लिए पॉलिसी के हिसाब से देखा जाएगा कि देयर शुड बी नो गेम्स रिगार्डिंग वायलेंस अबेटिंग वीडियो गेम्स एडिक्शन एक्सेट्रा। साथ ही साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसको भी देखा जाएगा कि कैसे भी गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस इसको भी डिफाइन किया जाएगा। और दूसरा है कि जो भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव रहेगा विजुअल इफेक्ट्स में गेमिंग एंड कॉमिक्स सेक्टर में, it will help not only for investment but also for creating narrative across the world regarding India's story, because the gaming industry's market is expected to reach of to around 5 billion in 2025 from 1.5 billion now. Then total government debt वो increase हुआ है 147 लाख करोड़ by September end. Public debt accounted for 89% of total gross liability. Then airbag industry, जैसे कार का बिक्री बढ़ रहा है और साथ ही साथ the policies of the government is towards the safety for the passengers, उसमें airbag industry ग्रो कर रहा है to around 7,000 करोड़ by 2027. That's all for today. Thank you.